Assalamu alaikum. This is Memuna Salim serving as cooperative teacher at Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. We are preparing video lectures to provide you an opportunity to learn and prepare for exams while staying at home during this crucial time period. The topic which I am going to cover in my lecture is mineral elements. So we will learn about the minerals and their functions, and will cover in detail the functions, sources, requirements and deficiency diseases of some minerals which are of greater importance in our body, which include calcium, phosphorus, iron, sodium chloride and potassium. Now, what are minerals? Let's see the first definition. Minerals are those elements in foods that our bodies need to develop and function normally. It means कि मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं जिन हमारे खाने में मौजूद, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अच्छे से काम करने के लिए और ग्रो करने के लिए. लेट्स सी द सेकेंड डेफिनेशन. दोज एलिमेंट्स विच रिमेन लार्जली एज ऐश व्हेन फूड मटेरियल्स आर बर्न्ड. दिस डेफिनेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रेफरेंस बुक Food and Nutrition by D.N. Dastoor. In this definition, mineral elements are termed as ash because these mineral elements are the material which remain as the residue after your food is burnt in our bodies. होता क्या है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, सो वॉट एवर द फूड वी हैव टेकन, तो उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ये सब बर्न होते हैं और मेटाबोलाइज हो जाते हैं. मगर मिनरल एलिमेंट्स बर्न नहीं होते और इसी तरह हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स सी फंक्शंस ऑफ मिनरल्स. देयर आर at least 20 mineral elements which are essential to our body for a variety of reasons. Some of them are included here. Number one is bodybuilding. An example of this is, we all know that we need mineral elements for the development and strengthening of bones, teeth, cartilage and tissues. Second is control of body processes. A lot of body processes are controlled by the mineral elements, examples of which are transmitting nerve impulses, contraction and relaxation of muscles, and minerals being part of enzymes and hormones regulate a lot of body functions. Third is essential part of body fluids. Minerals help in maintaining adequate amount of water in tissues by regulating the body fluids. So we have two categories of minerals. Some minerals are required in relatively larger amounts. They are called essential minerals and macro minerals also. Examples of this include calcium, iron, phosphorus, potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium. And there are some minerals which are required in very minimum amounts, and these are termed as trace elements. इनको हम trace elements इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इनकी ज़रूरत बॉडी को इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये अमूमी तौर पर खानों से हमें मिल जाते हैं और बहुत ही रेयर केसेस में इनकी डेफिशिएंसी जो है वो अपेयर होती है. यूजुअली इनकी डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती. Examples of trace elements include iodine, fluorine, copper, manganese, zinc, chromium and selenium. Let's move towards our first mineral, which is calcium. First we will see the function. Number one function is it provides hardness and strength to bones and teeth. अच्छा, होता क्या है कि कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट. ये जो चीफ मटेरियल है ये हमारी बोन्स और टीथ को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सेकेंड फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. इट मीन्स कि खून को जमने में मदद देता है. थर्ड फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स. इट मीन्स के मस्कुलर और जो नर्व एक्टिविटी है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इसके लिए भी हमें जितनी भी हमारी नर्व एक्टिविटी है उसके लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है. फोर्थ फंक्शन इज़ कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि हमारी बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस के लिए कि वो मेंटेन रहें उसके लिए भी हमें कैल्शियम की नीड होती है. Let's see sources now.
द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इंक्लूड मिल्क, चीज़। अच्छा, इसके अंदर तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है, जैसा कि योगर्ट है, आइसक्रीम है, ड्राइड मिल्क पाउडर है, एंड बटर, घी, क्रीम, जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम जो है वो हमें कैल्शियम बहुत अच्छा कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। देन ब्रेड एडेड टू वाइट फ्लावर बाय लॉ, लाइक अगर ब्रेड को फोर्टिफाई किया है कैल्शियम से देन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज़ बोन्स ऑफ केन फिश। जो केन में जो हमें फ़िशेस मिलती हैं वो यूजुअली बोन्स के साथ कंज्यूम की जाती हैं, जिसकी एग्जांपल है सार्डीन्स एंड सैल्मन। नीचे जो पिक्चर्स हैं ये मैंने इसी को शो कर रही हैं, केन फिशेस को। तो ये भी अगर जो है वो फ़िश बोन्स के साथ कंज्यूम की जाए तो वो आपको अच्छा कैल्शियम प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज़ हार्ड वाटर विच इज़ द ड्रिंकिंग वाटर। ये तो हो गई गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत अच्छी नहीं होती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। हम सब इसको कवर कर चुके हैं कि सेलुलोज इज़ अ पॉलीसैकेराइड विच आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हमने उसको गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम में इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह जो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम मौजूद होता है, लेकिन फाइटिक एसिड जो एक सब्सटेंस है उसकी मौजूदगी की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करती है हमारी बॉडी में। होल ग्रेन सीरियल्स के अंदर आपके तमाम दालें, गंदम, जौ, ये जो और जो गंदम, जौ का आटा, दलिया, ये सब आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम and phosphorus absorption is controlled by vitamin D. So we can say that sufficient supply of calcium, phosphorus and vitamin D is required for the normal functioning of the body. अच्छा, नीचे अब हमारे पास चार्ट है RDA का। RDA stands for recommended dietary allowance for the calcium। अगर हम RDA के चार्ट को देखें तो हमें ये पता चलता है कि कैल्शियम की नीड थ्रू आउट द लाइफ ही, कैल्शियम की ज़रूरत हमें थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी इनिशियली हमारी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, फिर हमारा स्केलेटन डेवलप हो रहा होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि कैल्शियम को एडिक्वेट अमाउंट में लेने के साथ साथ अगर एक्सरसाइज को भी रेगुलरिटी के साथ अपनी हैबिट बनाई जाए और रेगुलरिटी के साथ किया जाए तो उससे बोन प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट होती है। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि टिल द 30 ईयर्स ऑफ एज ना सिर्फ ये कि हम गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम कंज्यूम करें अपनी डाइट में, बल्कि साथ ही साथ रेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज भी करें, ठीक है, क्योंकि अराउंड द एज ऑफ 30 हमारी बॉडी से फिर कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है और रिप्लेस नहीं होता। उसके बाद जो हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के थ्रू वो फिर हमारी बोन्स की मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज़ होता है। अच्छा, अब अगर हम टेबल को देखें अपना, तो अगर हम चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट को देखें तो 525 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है टिल द 12 मंथ्स ऑफ एज, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड हो रही होती है। फिर 1 till 10 ईयर्स तक रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, विच रेंजेस फ्रॉम 350 to 550 मिलीग्राम पर डे। मेल्स में 11 to 18 ईयर्स टीन एज के ईयर्स हैं, इसमें आपका स्केलेटन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, तो उस वक्त वी नीड 1000 मिलीग्राम पर डे। 19 till 50 ईयर्स में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ हो गई है, 700 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। इसी तरह फीमेल्स में 11 till 18 ईयर्स 800 मिलीग्राम पर डे, एंड 19 till 50 ईयर्स में वी नीड 700 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे। लैक्टेटिंग वुमेन में वी नीड 1250 मिलीग्राम पर डे बिकॉज वी ऑल नो दैट they require good calcium intake because of the feeding, because they have to feed their babies. Next is deficiency of calcium. सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ हमें नज़र आती है, इट इज़ नोन एज रिकेट्स, विच इज़ ड्यू टू द इम्प्रॉपर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। और इसमें होता क्या है कि जो टांगें हैं वो बेंड हो जाती हैं, जो हाथों के जॉइंट्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। कर्व लेग्स जो हैं वो हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो हमारे पास प्रेजेंटेशन में है। एडल्ट्स में जो डेफिशिएंसी
हमें नज़र आती है, इट इज़ नोन एज ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उसकी वजह भी इम्प्रॉपर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होती है. Third is the condition which is known as tetany, in which muscles and nerves do not function correctly, as a result of which muscles contract rigidly and the patient has convulsions and muscle cramps. टेटनी एक कंडीशन है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से अपेयर होती है और जिसमें पेशेंट को जो है वो मसल्स में सिवियर पेन होता है, क्रैम्प्स उठते हैं और जो है वो झटके भी पड़ते हैं. Our next mineral is phosphorus. Let's see its functions. Phosphorus works with calcium and perform the same function as that of calcium. तो main function phosphorus का ये हुआ कि phosphorus helps in the formation of bones and teeth. ठीक है. Next is production of energy in the body. Phosphorus helps the body to make ATP molecule which the body uses to store energy. In that way it helps in the energy production. Third is phosphorus is the constituent of every cell and is important for cell multiplication. Next is sources of phosphorus. Phosphorus is present in all natural foods, either they are from the animal sources or the plant sources. It also being the part of many proteins, so the good sources of protein are also the good sources of phosphorus, which includes milk and its products, meat, नट्स एंड सीड्स. जितनी भी आपकी फूड सोर्सेज जो कि प्रोटीन रिच होती हैं वो फॉस्फोरस रिच भी होती हैं क्योंकि बहुत प्रोटीन के कंपाउंड्स में फॉस्फोरस भी अटैच होता है. इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो बहुत सी मैन्युफैक्चर्ड फूड्स में एज एन एडिटिव भी डाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स. सो बहुत से प्रोसेस फूड्स, केन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी फॉस्फोरस कंटेनिंग होते हैं. Now the requirement of phosphorus. A normal diet is sufficient to supply phosphorus for all age groups, so there is no definite requirement of phosphorus to be taken on daily basis to meet its requirement. And related to the deficiency, there is no deficiency disease known to occur in humans because of lack of phosphorus in the body. So after this I'm ending my lecture here. We have covered 2 mineral elements out of 4 in this video. The remaining 2 will be covered in the next video lecture. So stay connected with us through this online educational platform. Thank you very much for listening.